You know, as we look at the world, we definitely have eyes that capture what is around. और जैसे हम संसार की ओर देखते हैं, हम ऐसी निगाहों को देखते हैं जो तुरंत हमारी आंखों के सामने आती But है। when we look at people, at times we don't get affected by what we see. और जब हम लोगों को देखते हैं, कभी-कभी उनके किसी भी स्वभाव का असर हम पे नहीं होता। You know, everyone looks at people with a different orientation. हर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को एक अलग नजरिए से देखता है। A salesman going out in the morning looks at the people, एक सेल्समैन जो अपने घर से बाहर निकलता है वो अलग नजरिए से देखता and है then he says, "Can I get customers?" और वो ये देखता है कि कहीं से कहीं ना कोई कस्टमर उसे मिल A जाए। policeman goes on patrol और जब पुलिसमैन बाहर जाता है to see who is breaking the law, और वो देखता है कि कौन कानून तोड़ रहा है, and so on. Everyone goes with some kind of a perspective in mind. और कोई ना कोई हर कोई जो है हर प्रकार की सोच के साथ बाहर निकलता है। But once you become a child of God, the way you look, the world will definitely be different. लेकिन जब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो जिस नजरिए से आप देखते हैं आप अलग तरीके से देखते Today हैं। we just saw a brief video. और अभी हमने जो वीडियो देखा, You know how many kinds of thoughts go through the minds of people. उनके दिमाग में मस्तिष्क में किस प्रकार की सोच गुजर रही थी। And it is such difficult times that they need the love and touch of और God. ऐसे कठिन समय में उन्हें प्रेम की आवश्यकता है, एक छुअन की आवश्यकता है। Jesus once told his disciples, "Look up your eyes and see. Lift up your eyes and see." यीशु ने एक बार अपने चेले को कहा कि अपनी निगाहों को ऊंचा उठाओ और देखो। The field is ready for harvest. और कटनी के लिए जो है तैयार है सब कुछ। What did he mean? इसका क्या तात्पर्य था? He said people were waiting for a time they would receive God's touch. और वो ये कहना चाहते थे कि लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से प्रभु की आवाज सुने, उनकी छुअन को महसूस करें। People were waiting to receive a message of hope. और आशा की, उम्मीद की एक सोच को पाने के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे। And the time has come now, and there is the message of hope that is ready for them. और समय आ चुका है कि जहाँ पे आशा से भरी, उम्मीद से भरी एक संदेश उनके लिए तैयार And है। as we are going to give them, they are going to respond. और जैसे हम उन्हें वो चीज दे देंगे, वो उसका प्रत्युत्तर हमें And they देंगे are going to become citizens of the kingdom of और God. स्वर्ग के राज्य के वो उत्तराधिकारी बन जाएंगे। That is what Jesus meant when he said, "The field is ready unto harvest." और वही बात यीशु मसीह ने कहा कि कटनी के लिए खेत तैयार है। We live in this great country of India. और हम इस महान भारत में रहते हैं। You know, I travel around the world and people always have so many questions about और India. भारत के छोर तक मैं यात्रा करता हूँ तो बहुत लोग मुझसे बहुत प्रकार के प्रश्न करते हैं। India is the only country with so many languages and cultures that coexist. और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और भाषाएं बोली जाती हैं। India is the only country that is developing in spite of a culture of corruption. और भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे करप्शन है, लेकिन फिर भी देश उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है। India is the only country with so many states, but they can still mind their own business and then work alongside. भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग प्रांत है, लेकिन फिर भी एकजुट होकर वो उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। So there are many things to rejoice about this great nation. और ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमारे दिल को सुकून पहुंचाते हैं हमारे And we देश are the world's largest democracy. और जो है हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। No country in the world has an election like ours. और कोई भी अभिन्न देश ऐसा नहीं है जहाँ पे इस प्रकार का इलेक्शन होता And है। every time an election is conducted, people around the world look at this country and wonder how it can be conducted और smoothly. जब भी चुनाव लड़ा जाता है हमारे देश में तो लोग बात करते हैं कि किस प्रकार इस चुनाव को ये लड़ते हैं। So we are proud to be Indian. और इस बात पे हम घमंड करते हैं। At the same time, you look at this country. लेकिन फिर भी हम एक अलग दृष्टि से इस देश There को is देखते also हैं। poverty. यहाँ पे गरीबी भी है As I told you yesterday, there is violence. और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वायलेंस है, And there मारामारी is है a communal clash everywhere. और हर प्रकार की जाति के लोग एक दूसरे से You know भिड़ंत what करते happened in हैं। UP, the communal clash there. और यूपी में जिस प्रकार हमने देखा इस विषय You को, know what happened in Assam. आप जानते हैं कि असम में क्या हुआ And I can go on and on what is happening in Kashmir. और मैं बता सकता हूँ कि कश्मीर में क्या हो रहा And है। we don't want these things to continue. हम नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसी चीजें जारी रहें At the same time, one side of India is developing and another side is not और developing. उसी समय एक तरफ का भारत उन्नति की ओर बढ़ रहा है, एक तरफ का भारत So अंधकार there की is ओर। an imbalance. और यहाँ पे तुलना बिल्कुल सही नहीं है। One region is able to provide very good health services, but the other side is not able to. एक तरफ अच्छी स्वच्छ चीजें मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है, लेकिन एक तरफ वो चीज है नहीं। One state is known for good schools and universities, and there is another state where there is no school or no good एक university. नगर में अच्छे स्कूल है, अच्छी पाठशालाएं हैं और एक ऐसा नगर है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। And because of these imbalances, the problems in this nation continue. और क्योंकि ये सब चीजें स्थिर नहीं है, इस वजह से जो है
leaders of this nation wonder what is the future for this और country. जो इस देश के अगुवे हैं, जो नेता है, वो इस बात पे से चिंतित है कि इस देश का क्या होगा। They are wondering how to find solutions to the problem of this country. और वो सोचते हैं कि इस समस्या का समाधान मैं कैसे ढूंढूं। But Jesus looks at this country very differently. लेकिन यीशु मसीह अलग नजरिए से हमारे देश को देखता Because है। Jesus believes that everyone is important to him. यीशु मसीह विश्वास करता है कि हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। Jesus loves the rich and the poor alike. यीशु मसीह अमीर गरीब हर एक व्यक्ति को एक समान प्रेम करता है। Jesus loves the educated and the illiterate alike. जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ है, हर एक व्यक्ति को एक दृष्टि से देखता है। Jesus loves the people from the north and the south and the east and the west alike. उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर छोर से यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को एक समान देखता In है him there is no favoritism. और उसके प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता। So when there is a problem with the society, जब समस्या आती है समाज में, when there are problems that people face with and don't know what to do, जब लोग समस्या का समाधान ढूंढते हैं और उन्हें वो मिलता नहीं है, and people try to find meaning for their lives in religions they belong to, उनके जीवन के लिए वो एक अर्थ ढूंढते हैं, एक लक्ष्य ढूंढते हैं उस and समय, then people are so meticulously involved in all the rituals in order to feel good, in order to overcome evil. और समाज में बुराई से जीतने के लिए हर प्रकार की नाना प्रकार की चीजों में अपने आप को धकेलते हैं। Jesus looks at them with a heavy heart. और यीशु मसीह एक भारी हृदय के साथ उनकी ओर देखता And है Jesus says these people are like sheep without shepherd. और वो कहते हैं कि ये ऐसी भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है These people are living in darkness और वो अंधकार में जी रहे हैं and they need to come out of it. और उससे उन्हें बाहर निकालना है। They need to know what life is all about. उन्हें जानना है कि जीवन क्या है They need to know what is their destiny. और उन्हें जानना है कि उनका लक्ष्य कहाँ पे They need to है। know why they were born. उन्हें जानना है कि उनका जन्म क्यों हुआ। They need to know what's going to happen after death. उनको जानना है कि मृत्यु के पश्चात क्या होने वाला They need है। to know who is going to take them out of darkness and lead them into light. कौन उन्हें अंधकार से उठाए और ज्योति की ओर उन्हें ले जाए। They need to know who is there to give them hope amidst all the social issues they उनको face. जानना है कि कौन आशा का कारण उनके जीवन में बन सकता है जब वो समाज में समस्या का सामना करते हैं। At such a time, ऐसे समय में only God's people can step in and tell this nation that Jesus is the answer. सिर्फ प्रभु के जन जो है खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं कि यीशु मसीह ही हर प्रश्न का उत्तर है और हर समस्या का समाधान है। If Jesus doesn't intervene and touch the lives of people, nothing is going to change. अगर यीशु मसीह नहीं आएगा और वो कार्य को नहीं करेगा तो कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। We don't want to see families being shattered. हम नहीं चाहते कि परिवार दुख के साथ झेले और मर जाए। We don't want to see moral values being compromised. हम नहीं जानते कि किसी भी प्रकार का मॉरल वैल्यू जो है उसे हम किसी भी तरीके से तोड़ें। We don't want to encourage an immoral generation coming up. हम नहीं चाहते कि एक बुरा अधर्मी समाज उत्पन्न हो। We want to find an end to all the evil practices in this सारी nation. बुरी आदतों के लिए एक अंत चाहते हैं And Jesus is the answer. और यीशु ही उसका जवाब है। Yesterday I talked to you about doing good works. कल मैंने भले कार्य को करने के लिए आपको उत्साहित किया। If good works is the only thing that we need to do, अगर भला कार्य ही है जिसे हमें करना है, we don't even need to become Christians. हमें मसीही बनने की जरूरत नहीं है। Because looking around, we know for some good works to happen, you don't need Christians. Anybody with a good heart can do good works. आप जानते हैं कि भले कार्य करने के लिए सिर्फ एक भले हृदय की जरूरत होती है, वो तो किसी के पास भी हो सकता But है। there is more to life than just good works. और भले कार्य से भी ऊपर कुछ है जो हमें करना है। God has a message to convey to every human being. प्रभु के पास एक मैसेज है जिसे हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाना है। And the word of God says the gospel is the only way to transform the lives of people. और वो संदेश ये है कि सुसमाचार ही वो कार्य है जो जीवन को परिवर्तन कर सकते And हैं। this gospel has reached us. और वो सुसमाचार हम तक पहुंच चुका है। How many of you here are happy because the gospel reached you? कितने लोग आनंदित हैं कि सुसमाचार Can I यहाँ see तक your पहुंच hands? चुका है? Can I see your hands? क्या मैं आपके हाथ देख सकता You हूँ? can put your hands down. आप अपने हाथ नीचे रख सकते हैं। We did not go to find it anywhere. हम कहीं पे भी उसे ढूंढते हुए नहीं गए। We don't travel to another country to find the gospel. हम सुसमाचार की खोज में दूसरे प्रांत या देश में नहीं गए We did not go on pilgrimage to find this gospel. और किसी भी प्रकार की पिलग्रिमेज या कहीं पे भी गए नहीं जहाँ से हम उसे We प्राप्त did कर not सकें। pierce our bodies in order to find this हमने अपने gospel. शरीर में किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई उसे हासिल करने We के did लिए। not go walking and walking and walking in order to find this हम gospel. चलते कहीं और नहीं गए उसको हासिल करने के We लिए। did not go to a temple city to find this gospel. और किसी मंदिर में नहीं गए कि हम इस सुसमाचार को पा सकें। This gospel came to right where we were. और ये सुसमाचार
सुसमाचार हम जहाँ पे थे, जहाँ खड़े थे, वहीं तक हमारे पास Because पहुंचा। somebody realized that we needed this. क्योंकि किसी को ये बात समझ आ गई कि हमें उसकी आवश्यकता Somebody है। realized that we wanted it. कोई इस बात को समझ गया कि हमें इसकी जरूरत है। Everywhere I go, there is one thing that I always say. और जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, एक कार्य है जिसके बारे में मैं बोलता हूँ। The first book to be printed in this great country was the Tamil Bible. और इस महान भारत में जो पहली पुस्तक छापी गई थी वो बाइबल थी। Only with the Tamil Bible, printing process began in this और country. तमिल बाइबल जो है उसका छपना भारत में पहला यहीं पे शुरू हुआ था। But that Tamil Bible was not translated by an Indian. और वो किसी भारतीय के द्वारा जो है विदेशी भाषा से तमिल में नहीं ट्रांसलेट किया गया था, It अनुवाद नहीं wasn't किया गया था, translated by a Tamilian. बल्कि वो एक किसी मद्रासी के द्वारा, तमिलियन के द्वारा उसे नहीं अनुवाद It किया was गया था। translated by a German. और एक जर्मनी जो था उस उधर के एक व्यक्ति के द्वारा उसे अनुवाद में लाया गया था। You look at the German language and you look at the Tamil language, they don't have anything in common. और आप तमिल भाषा को देखें और जर्मन भाषा को देखें, उसमें किसी भी प्रकार की समानता नहीं है। But someone took it up as a burden. लेकिन किसी ने अपने हृदय में एक बोझ की तरह उसे ढो लिया And then they said, we need to take this to this country. और उन्होंने ये निर्णय किया कि हमें इस देश तक इस संदेश को पहुंचाना है। So almost 300 years ago, they said, we need to take the gospel to India. और 300 साल पहले उन्होंने ये निर्णय लिया कि किसी भी प्रकार से इस सुसमाचार को मुझे भारत देश पहुंचाना है। And it is the same Bible that we are using today. और वही वो बाइबल है जिसका प्रयोग आज हम करते हैं अपनी भाषा Thank में। God for those men who said, we are ready to dedicate our lives. धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि हम अपना जीवन इस कार्य के लिए अर्पण करते The हैं। man who translated the Bible died at the age of 38. और जो व्यक्ति जिसने बाइबल का अनुवाद किया था हमारी भाषा में, If he had lived for another 40 years, God knows how many things he would have done. लगभग 30-35 साल की आयु में इसका देहांत हो गया। अगर वो उससे ज्यादा जीता तो क्या क्या कर सकता था। But before he became 38, he did something and it is lasting for generation after generation. 48 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते उसका देहांत हो गया और उसने बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाया। Because he said, I need to do something. उन्होंने एक निर्णय लिया था कि मैं कुछ I करूंगा। need to give these people the word of God, and he brought the word of God into लोगों this तक मैं country. प्रभु के संदेश को, वचन को पहुंचाऊंगा और उन्होंने वो कार्य किया। And the same challenge is before us. और हमारे साथ भी ऐसी ही चुनौती है। The gospel that we all believe in needs to be shown in action. जो सुसमाचार जिस पे हम विश्वास करते हैं उसे बीच की तरफ होना जरूरी But है। as you all know, the Bible is not a small book. जैसा आप जानते हैं कि बाइबल कोई छोटी सी पुस्तक नहीं है This is such a big book. और ये इतनी बड़ी पुस्तक है It talks about the entire mankind. और पूरे मानवता के बारे में ये बताती है। And for someone to understand what is inside, और कोई इस बात को समझे कि इसके अंदर क्या है you know, there is a mediation that is needed. और एक उनको चलाने वाले की जरूरत है जो उनको सिखा सके। That is why Jesus said the harvest is plentiful, the laborers of few. इसीलिए प्रभु ने कहा कि खेत कटने के लिए तैयार है लेकिन काटने वाले मजदूर नहीं है। Who are those laborers? और कौन वो मजदूर होगा? Someone who go and expound what the word of God says and announce to the people. कोई जो जाए भीड़ में और लोगों को समझाए कि प्रभु का वचन क्या कहता है। And when people have doubts, they would explain what the word of अब God जब means. लोगों के अंदर संदेह आएगा उसे सुन के तो आप उन्हें समझाएं कि उसका क्या तात्पर्य है। It refers to people who would go, और ये उन लोगों के बारे में बताया गया जो जाते people हैं, who would speak, जो बात करते हैं and people who will show Jesus in action. और जो अपने कर्म से, अपने कार्य से यीशु मसीह को दर्शाते हैं। That is a need in the kingdom of God. और प्रभु के राज्य की यही जरूरत है। And Jesus complains there is a shortage. और यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि मांग है ऐसे मजदूरों की। Jesus says the laborers of you. और प्रभु चाहता है कि आप वो मजदूर बने। And this is what we are going to discuss right now. और इसी विषय में आज हम बात करेंगे। You know, in the Old Testament book of Jeremiah, और यिर्मयाह की जो पुरानी पुस्तक है, chapter 1, अध्याय 1 verses 4 to 9, और वचन 4 से 5, we have a portion what we call the call of Jeremiah. और वहाँ पे यिर्मयाह की बुलावट के बारे में देखते हैं। And verse 4 says the word of the Lord came to him. और वचन कहता है कि प्रभु का वचन उस तक पहुँचा। And every time I read that, I am so delighted. और जब भी मैं सुनता हूँ तो मैं आनंद मनाता हूँ इन शब्दों Because it को। doesn't say God came to him, it says the word of God came to यहाँ him. पे लिखा गया नहीं है कि परमेश्वर वहाँ पहुँचे, बल्कि प्रभु का वचन वहाँ पे पहुँचा। Because there are people who say, if God comes to me, then I will obey. कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर प्रभु मेरे पास आए तो मैं उन्हें अपना लूंगा। If God speaks to me, I will obey. अगर प्रभु मुझसे बात करे तो मैं
If God calls me by name, then I will obey. अगर वो मुझे नाम से पुकारे तो मैं उसे अपना लूंगा। But even to Jeremiah, it was the word of the Lord. लेकिन यिर्मयाह के पास उसके शब्द जरूर We do not know how it came, और वो कैसे आए, but we know it was the word of the Lord. और हम जानते हैं कि वो प्रभु के वचन थे। And when the word of the Lord came to him, the word said this. और वचन जब उनके पास पहुंचा तो वचन The first part says, I knew you even before you were और formed in your वचन mother's कहता womb. है कि तुम्हारे माँ के गर्भ में तुम्हारे उत्पन्न होने से पहले मैं तुम्हें जानता हूँ। That means my knowledge of you has got nothing to do with your parents. और इसका मतलब ये है कि मैं जिस बात की ज्ञात रखता हूँ तुम्हारे बारे में वो तुम्हारे माता पिता से जुड़ी हुई That नहीं है। means God's knowledge of us has got nothing to do with the place we were born. इसका मतलब ये है कि प्रभु का ज्ञान जो हमारे बारे में है वो किसी हमारे रिश्तेदारों से जुड़े हुए नहीं है। If I ask any of you to write your biodata, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना बायोडेटा you're लिखें, going to begin with your name. आप अपने नाम से शुरुआत करेंगे, You're going to begin with your parents' आप name, अपने माता पिता का नाम लिखेंगे, followed by the address, उसके बाद अपना एड्रेस लिखेंगे, and the date of birth, उसके बाद आपकी जन्म तिथि लिखेंगे, which school you went to, आप किस स्कूल में गए थे and then which college you went और फिर to. उसके बाद किस कॉलेज में गए थे You know what is your extracurricular activity. और आप किस चीजों के बारे में जानते हैं, You know what is your qualification. आपकी क्वालिफिकेशन पढ़ाई क्या What है, is your special skill. आप क्या क्या कर सकते हैं। And if you prepare anything like that and go and give it to God, अगर आप ऐसा कुछ तैयार करते हैं और प्रभु के हाथ में देते हैं, God will tear it and say, before any of this could be written, I knew you. प्रभु उसे फाड़ देगा और कहेगा कि इस सब कार्यों से पहले से ही मैं तुझे जानता You था। have no need to introduce yourself to me to say what kind of a person you are. कोई जरूरत नहीं है कि तुम मेरे सामने आए और अपने आप के बारे में कुछ बताओ कि मैं कौन हूँ। You don't need to tell me what is your family situation. आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपके परिवार में क्या समस्या You है। don't have to tell me about your communication skills. आप किस किस कार्य में क्या कर सकते हैं उस बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं I है। don't need any of them. मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। Even before you were given a name, I knew you. आपके नाम से पुकारे जाने से पहले ही मैं तुम्हें जानता हूँ। I'm sorry to say that many people read this particular scripture for comfort, और बहुत सारे लोग सिर्फ अपने आप को सांत्वना देने के लिए इस वचन को पढ़ते हैं, and then they do not go beyond that. उसके बाद उस वचन से आगे कभी बढ़ते नहीं But हैं। that particular day, the Lord had to tell Jeremiah, लेकिन उस दिन यिर्मयाह को प्रभु ने इस प्रकार कहा, I knew you before you were formed in your mother's womb, तुम्हारी माता के गर्भ में तुम्हारे सृजन होने से पहले ही मैं and जानता I हूँ, also set you apart before you were born. और तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मैंने तुम्हें अलग कर दिया। You know, your parents didn't know what to do with you. आपके माता पिता नहीं जानते थे कि आपके साथ क्या They करें। didn't know whether you were going to be a boy or a girl. वो नहीं जानते थे कि ये लड़का है या लड़की है। But while you were still inside, I set you apart. लेकिन जब तुम गर्भ में थे उसी समय तुम्हारा चुनाव मैंने कर दिया। And then he goes on to say, I appointed you as a prophet to the nation. और उसके बाद वो कहते हैं इस देश के लिए मैंने तुम्हें भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। So that is what verse 5 talks about. और वही वचन 5 कहता है। You know, this evening as you hear this particular scripture, इस संध्या के समय जब आप इन वचनों पे मनन करते हैं don't try to take just one portion of the scripture that is convenient to you. और वचन का सिर्फ एक भाग ना ले जो आपको खुश करता है। You know, God has no one in his kingdom who is useless. और प्रभु के राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रयोग में ना आ सके। God doesn't have unemployed people in his kingdom. प्रभु के राज्य में ऐसा कोई भी नहीं जिसको कोई काम ना दिया जाए। Whoever comes into his kingdom, they have a task at hand. और जो भी प्रभु के राज्य में आता है उनको एक काम दिया जाता है। And that is exactly what the Lord told Jeremiah. और यिर्मयाह को भी प्रभु ने यही कहा था। If the Lord had stopped with just the first portion of the sentence, अगर प्रभु सिर्फ पहले वाक्य पहले पंक्ति में ही रुक जाता, if he had only said, I knew you before you were formed in your mother's womb, अगर वो सिर्फ ये कहता कि तुम्हारे माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले मैं तुम्हें जानता था, probably Jeremiah would have been happy. हो सकता है कि यिर्मयाह बहुत खुश हुआ हो। But the Lord said, I set you apart, I have already appointed. लेकिन प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें अलग कर दिया और तुम्हें नियुक्त किया है। You know, that is when Jeremiah says, no, और उस पल यिर्मयाह कहता है नहीं, I cannot speak. और वो कहता है कि मैं नहीं बोल सकता, I am only a young man. मैं सिर्फ जवान व्यक्ति हूँ, I am only a child. मैं एक बालक हूँ। Now that was Jeremiah's excuse. और वही यिर्मयाह जो है वहाँ पे बहानेबाजी देता And है। now I want to tell you, whenever people feel that God is calling them, और जब भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी लोग ये महसूस करते हैं कि प्रभु उन्हें बुला रहा they है are quick with excuse. और वो बहुत जल्दी तत्पर है बहानेबाजी देने You में। know, you forget about everything, let's just look at it objectively. आप जो है बाकी सब चीजों को भूल जाए, एक उदाहरण के साथ
मैं बोलता if हूँ, we are called अगर मुझे बुलाया गया है and if the word of the Lord comes to और us, प्रभु के शब्द मेरे पास आते हैं, we need some time to think about it. हमें थोड़ा समय मिलता है कि हम सोच सके What is the Lord saying when He says, I know you? क्या परमेश्वर कहता है जब वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता What is the Lord saying when I set you हूँ। उसका apart? क्या मतलब है जब वो कहता है कि मैंने तुम्हें अलग किया है। What is the Lord saying when He says, I appointed you? और उसका क्या मतलब है जब वो कहता है कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। But Jeremiah was so quick to respond and say, no, I cannot speak, I'm a young man. और यहाँ पे यिर्मयाह बिल्कुल तुरंत कहता है कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता, मैं तो युवक हूँ। Every time when there is an invitation for people to respond to the call of God, और प्रभु की बुलावट के लिए जब भी आपके पास न्योता आता है, this is what they say. और वो इसी प्रकार की बहाने देते That's हैं। why one young man said, let me go and bury my father, then I will join you. इसीलिए एक जवान ने यीशु मसीह से कहा, मुझे जाने दो, मैं अपने पिता को कब्र में दफनाऊं Jesus said, फिराऊं। don't worry, let the dead bury the dead, but you come. तब यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को दबाने दो। Jesus gives no time for people to discuss and give explanations. और यीशु मसीह कोई समय आपको नहीं देता कि आप किसी भी प्रकार की बहानेबाजी Because सुनाएं, excuses are many. क्योंकि जो बहानेबाजी करते हैं If वो उनके only पास बहुत से बहाने होते if हैं। only we need to give an excuse, none of us will lack an excuse. अगर वो उस बात की मान्यता देता तो हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता था। It is Prime Minister Jawaharlal Nehru who said, I am not interested in lame excuses, I am interested in things done. और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार कहा कि मैं किसी भी बहानेबाजी को नहीं मानता, मैं चाहता हूं कि कार्य That उसी समय हो is जाए। exactly what Jesus wants to और say. यीशु मसीह भी वही आपसे कहना चाहते हैं। I am not speaking to you for you to find an excuse. मैं आपसे बात इसीलिए नहीं कर रहा कि आप मुझे कोई उत्तर दो, I जवाब दो। am speaking to you so that you would accept my word and you would respond. और मैं इसीलिए बात करता हूँ कि तुम मुझे जानो, समझो और स्वीकारो। Simon Peter was a regular fisherman. सिमोन पतरस जो था एक मछुआरा था, There was nothing great about him and nothing bad about him. और उनके बारे में कुछ महान भी नहीं था और उनके बारे में कुछ बुरा भी नहीं था। And then one night he went fishing all night and he never got anything. एक रात्रि पूरी रात उन्होंने मेहनत मशक्कत की लेकिन एक भी मछली न And पकड़ then पाए। Jesus made use of this boat. और यीशु मसीह ने उनकी नाव का इस्तेमाल किया And then Jesus said, you cast into the deep. और यीशु मसीह ने कहा अब तुम जाल फेंको, And he did that and there was such a big catch. और उन्होंने वो कार्य किया और बहुत सारी मछलियां And पकड़ी। then everything was brought to the shore. और जब सब कुछ लाया गया किनारे में, Jesus said, say goodbye to it and follow me. यीशु मसीह ने कहा कि उसे गुड बाय बोलो और मेरे पीछे आ जाओ। Jesus never said, you take this market, और यीशु मसीह ने नहीं कहा कि इन मछलियों को तुम मार्केट में ले sell जाओ, everything, उसे बेचो give the money to the family, और पैसे परिवार को दो, hand over the boat to your partner. और जो बोट है, जो नाव है, उसे अपने दोस्तों को दो। Nothing. ऐसा कुछ नहीं कहा। He said, no. और उन्होंने कहा अभी, He said, no. अभी। And Peter obeyed. और पतरस ने उस बात का पालन किया And he followed Jesus right till the end. और अंत तक वो यीशु मसीह के पीछे चला। I want to tell you, don't have excuses. और मैं आपसे कहता हूँ कि आप बहानेबाजी ना करें। He knows you. वो जानता है आपको, He knows your background. आप जानता है कि आप कहाँ के If हो। your parents are poor, he knows that. आपके माता पिता गरीब है, वो जानता If है। someone is sick in your family, he knows that. आपके परिवार में कुछ समस्या है, वो जानता If you है। have something incomplete, he knows और that. कुछ कार्य को पूरा He करना है, says, वो I जानता है। know that, but still I'm calling you. वो कहता है कि मैं जानता हूँ इसीलिए बुला रहा हूँ। That is why we call him the Alpha and the Omega. इसीलिए हम उसे अल्फा और ओमेगा कहते हैं। Don't ever think Alpha and Omega mean just two letters in Greek. अल्फा और ओमेगा ग्रीक भाषा में दो शब्द है, ऐसे ना सोचे। He knows a person from the beginning till the end. बल्कि वो एक व्यक्ति को उसकी शुरुआत से अंत तक जानता है। No one needs to give a testimony about और themselves for किसी को Jesus to know. किसी को यीशु मसीह के प्रति अपनी गवाही देने की जरूरत नहीं है। I knew a family. मैं एक परिवार को जानता हूँ They were very good people. और बड़े अच्छे लोग थे Husband and wife, they had no children. और पति और पत्नी उनकी कोई संतान नहीं The थी wife was working for a travel agency. और जो पत्नी है वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम And करती थी। she had heart problems. उनके हृदय में कुछ समस्या थी But with treatment, she was okay. और उन्होंने इलाज कराया, वो ठीक थी। And one particular time, और एक समय ऐसा आया the company had a sales promotion. और उस कंपनी में कोई सेल्स प्रमोशन हुआ And the staff were also invited to join. और जितने भी लोग थे वहाँ पे काम करते थे उन्हें बुलाया गया। The winner with their spouse would get an opportunity to travel to Australia for a week and all expenses would be taken care और of. जो कार्य अच्छी तरीके से संपन्न करे, जो जीतता है उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा इनाम के रूप में। So on that great day, और वो दिन आया the result was announced. और वहाँ पे जो है रिजल्ट बताया गया, नतीजा, And this lady's name was announced. और इस बहन का नाम बताया गया।
and where they were so excited. और वो बहुत उत्साहित हुए So she was seated somewhere in the middle. और वो कहीं बीच में बैठी थी। She got up, वो उठी walked to the stage, और वो स्टेज में आई very excited, और बहुत उत्साह के साथ, and whatever certificate or envelope they gave, और जो भी चीजें उन्होंने दी उसको she received it. उन्होंने उसे प्राप्त किया। The joy was too much. वो आनंद बहुत अधिक था She collapsed right there, और वहीं पे वो गिर गई and when she was taken to the hospital, she was pronounced dead. और जब अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। What appeared to be a blessing और जो उनके लिए आशीष के रूप में आया made her die. उसने उसे मरने पे मजबूर कर Now, दिया। when we look at her case, we might have several judgments to make. और जब हम उनकी परिस्थिति देखते हैं तो हम बहुत प्रकार की नाना प्रकार की बातें But करेंगे, if anybody wins a trip like that, लेकिन अगर कोई इस प्रकार के तोहफे को हासिल करे, they will not say, I don't want to come. वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं नहीं जाना चाहता, In spite of knowing it can be disastrous. और वो जानते होंगे कि इसकी वजह से कितना नुकसान होगा, Everybody would say, I want to come. लेकिन हर कोई कहेगा कि नहीं मुझे जाना है। But this evening, I want to tell you, और इस संध्या के समय मैं ये कहना चाहता हूँ, when Jesus is not calling us to go to Australia or America, यीशु मसीह हमें ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भेजना नहीं चाहता। He has already called us to go to heaven. हमने उसे पहले ही बुला लिया है, चुन लिया है कि हम स्वर्ग जा If we सके। cannot trust Him in this world, how can we trust Him for a world that we have not even seen? और हम सिर्फ इस संसार की बातों पे उस पे भरोसा रख के जो बातें हम नहीं जानते उस पे You know, हम भरोसा ना रखें, ऐसा नहीं हो सकता। I want to join with all the people here who have made this shift from serving the world to serving God completely. और मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्य को शुरुआत से अंत तक संपन्न किया है। We have never become paupers because we decided to serve the Lord. हमने कभी भी ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है कि जिसने हमें निर्णय लेने में मजबूर किया हो कि हम उसके पीछे We have चले। never become paupers because we gave up our worldly career. और इस वजह से हम महान नहीं कहलाते कि हमने अपना सब कुछ त्यागा And है। when we came to serve the Lord, the people around us, our own family members, relatives, they all said, you have made such a foolish decision. और जब हम प्रभु की सेवा करने के लिए निकले, जो हमारे चारों ओर हमारे रिश्तेदार, हमारे प्रिय लोग थे, उन्होंने खुद कहा कि तुमने गलत निर्णय लिया है। And today everybody is acknowledging they made a mistake. आज हर कोई इस बात को मानता है कि हमने गलत कहा था। You know, this world will appreciate anything, but when you make a decision for the Lord, the world is not happy. ये संसार बाकी सब चीजों के लिए हामी भरेगा, लेकिन जब आप सेविकाई की ओर बढ़ेंगे तो आपको नकारेगा। So on that day when Jeremiah gave an excuse, और उस दिन जब यिर्मयाह ने बहानेबाजी की, the Lord spoke to him and said, do not say that I am young, do not say I cannot speak. प्रभु ने बात की और कहा कि ये मत बोलो कि मैं युवक हूँ, या ये मत बोलो कि मैं बालक हूँ। In other words, he was in a dignified way saying, shut up. और उन्होंने बड़े ही आदर के साथ यिर्मयाह से कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। You know, I might sound very stern, but I'm here to tell you, if you have an excuse to tell God, the only reply that He's going to give you is, shut up. हो सकता है मैं बड़ा ही नाराज सुनने में लगूं, लेकिन अगर आप कोई बहानेबाजी प्रभु से करते हैं तो वो आज आपको कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो। Because God is always in a position where He can say, I know what I'm talking about. क्योंकि प्रभु हमेशा उस स्थान पे विराजमान है जहाँ से वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस विषय में बात कर रहे But हो। you and I cannot say that. आप और मैं ये बात नहीं कर सकते, Because we don't even know if we will be alive tomorrow. हम नहीं जानते कि कल हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। You know, we might be glorifying the kind of job that we are doing, but we won't even know if we will lose the job हो next सकता month. है हमारे पास अच्छी नौकरी हो जिसकी हम बड़ाई कर रहे हो, लेकिन हम नहीं जानते कि कल वो नौकरी हमारे पास रहेगी या नहीं। We can never be sure about what we are talking about. हम कभी भी किसी भी बात का निश्चय नहीं कर सकते कि ये चीजें ऐसे ही होंगी, And God knows everything that He talks about. लेकिन प्रभु जो बात करता है उस बारे में सब कुछ जानता So है। God went one step further. और ये परमेश्वर एक और पद आगे गए, You need to go where I send you. उन्होंने कहा कि जहाँ मैं तुम्हें भेजता हूँ तुम्हें वहाँ पे जाना And you need पड़ेगा, to speak what I tell और you. मैं जो कहने के लिए कहता हूँ उसे तुम्हें कहना पड़ेगा। He still doesn't know where to go. और वो फिर भी नहीं जानते थे कि उन्हें He कहाँ still जाना doesn't है, know what to speak. उन्हें नहीं जानते थे कि उनको क्या बोलना You know, है, because going and speaking is a very tough job. क्योंकि जाना और फिर बात करना बेहद कठिन कार्य है। You know, I can tell you from my experience, मैं अपने अनुभव से ही बताता हूँ, and I'm sure many missionaries and pastors here would also agree with me. बहुत सारे सेवक और अगुवे इस बात से सहमति रखते होंगे। When we accepted the Lord's call, we didn't know what it meant to stand on the stage and speak. जब प्रभु की बुलावट को हम
हमने हामी भरी तब हम नहीं जानते थे कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। Until the Lord called me, I have never been to this stage. और जब तक प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया तब तक मैं कभी भी स्टेज में नहीं खड़ा हुआ। All my years in school and college, I had nothing to do with the stage. स्कूल और कॉलेज में स्टेज से रिलेटेड इससे जुड़ा हुआ मैं कोई कार्य नहीं करता So था। when the Lord called me, I thought maybe He made a mistake. जब प्रभु ने मुझे बुलाया तो मुझे लगा शायद प्रभु कोई गलती कर रहा है। And if I'm going to give Him a reason, the Lord is going to tell me, shut up. अगर मैं कोई वजह उसको बता था कि मैं ये नहीं करूंगा तो वो मुझे चुप रहने के लिए कहता। Don't speak to me, मुझसे बात मत करो, but I'm sending you. मैं तुम्हें भेजता हूँ। And there is something that you need to speak. वहाँ पे कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम्हें बात करनी है। So rather than wasting your time trying to speak to me, और speak to them. अपना समय मुझ पे बर्बाद ना करते हुए वहाँ जाओ और उस कार्य पे बर्बाद करो। And ever since the Lord sorted that out, और प्रभु ने उस समस्या का समाधान वहीं पे दे दिया। no platform or stage is a problem. और कोई भी प्लेटफॉर्म या स्टेज कोई समस्या मुझे नहीं देती। Whether there is a stage or there is no stage, it's not a problem. स्टेज है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Whether it is a crowd that is sitting quietly or an unruly crowd, it is no problem. कोई जमावट जो शोर मचाती है या शांत रहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You know, whether it is a hall or whether it is the road, it is not a problem. सड़क है या हॉल है कोई फर्क नहीं पड़ता। Is it because I am talented? ये इसीलिए कि मैं गुणवान हूँ उस वजह Someone से। is sending me with authority. कोई मुझे भेज रहा है किसी अधिकार के साथ। Someone is telling me what to speak. कोई मुझे कह रहा है कि मुझे क्या बात करनी Why है। should I worry? मैं क्यों चिंता करूं? And that is exactly what God was trying to make Jeremiah understand. और बिल्कुल वही यिर्मयाह को प्रभु समझाना चाहता था। I will send you मैं तुम्हें भेजूंगा, and I will tell you, मैं तुम्हें बताऊंगा, you go, तुम जाओ, you speak. तुम बात करो। And then he wanted to preempt a few things. और उससे पहले प्रभु उनको कुछ और समझाना चाहता। So first he said, उन्होंने पहले कहा, you know, don't be afraid. मत डरो, You know, he said, I will be with you. मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। You know, as this is becoming an increasingly a big problem with Christians nowadays. और मसीही लोगों के बीच में ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़ी हो रही है। The word of God says that God inhabits the praises of His children. और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु उस स्थान पे वास करता है जहाँ पे लोग स्तुति करते हैं। Don't see me as a critic. Listen to me. आप मुझे किसी भी प्रकार का क्रिटिक मत सोचिए, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं When सिर्फ बता रहा हूँ। people come to praise and worship, अब जब लोग आराधना स्तुति करने आते हैं they all believe that as we worship, we can experience God. और वो महसूस करते हैं और कहते हैं कि जैसे हम आराधना करते हैं प्रभु यहाँ पे उतर आता है। I agree 100%. मैं इस बात से 100% सहमति रखता हूँ। My question is, मेरा प्रश्न ये है, what happens after the worship is over? आराधना के पश्चात उसके बाद क्या होता है? Is God saying, okay, let me come back when you sing again? प्रभु ये कहता है आपसे, ठीक है मैं आ चुका हूँ, मैं जाता हूँ, दोबारा आऊंगा जब तुम आराधना करते हो। Is that what He says? क्या वो ऐसा कहता है? Is that what He says? क्या वो ऐसा कहता है? But many people seem to believe that. और बहुत लोग इस बात पे विश्वास भी करते हैं। They can feel the presence of God only if there is electrifying music. जब वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से म्यूजिक बजता है तभी वो प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर You पाते know, हैं। don't think bad about me. और मेरे बारे में आप ऐसा कुछ ना सोचें। I am a Pentecostal pastor. और मैं एक पेंटिकॉस्टल पास्टर हूँ। You don't have to tell me about sound. आपको आवाजों के बारे में मुझे बताने की जरूरत You नहीं don't है। have to tell me about worship. आपको आराधना के बारे में मुझे समझाने की You don't आवश्यकता have to नहीं tell है। me about music. आपको मुझे धुनों के बारे में समझाने की I आवश्यकता can नहीं है। teach you what it all means, and I've been a part of all that. और मैं आपको सिखा सकता हूँ इसका क्या बात, इसकी क्या सीख है और मैं उसमें उन्नति हासिल कर चुका हूँ। I'm still a part of it. मैं अभी भी उसमें शामिल होता हूँ। But that doesn't change the word of God. और लेकिन वो प्रभु के वचन को नहीं बदल सकती। God doesn't say, please sing, otherwise I cannot come to you. प्रभु God कभी doesn't नहीं say that. कहता है कि तुम गीत गाओ तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा वरना नहीं आ पाऊंगा। But that's how many people do. If I don't sing, God is not going to come. बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं कि अगर मैं ना गाऊं तो मैं प्रभु वहाँ पे नहीं आएगा। Hey, He is with you always. और वो आपके साथ हमेशा है। The Bible says you are the temple of the Holy बाइबल Spirit. कहती है कि पवित्र आत्मा के वास करने का स्थान है आप। And Holy Spirit dwells in you. और पवित्र आत्मा इस भवन में रहती है। I feel sorry for people who don't believe that the Holy Spirit dwells in there ऐसे लोगों से मैं निराशा करता हूँ जो ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं रहती and believe only during their worship the Holy Spirit comes, otherwise He goes off. और विश्वास करते हैं जब गीत गाते हैं तभी पवित्र आत्मा आता है वरना चला जाता है। That day the Lord told
Jeremiah, I will be with you. उस दिन यिर्मयाह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा You don't worry from now और on. आज से किसी भी बात की चिंता मत करो। I am sending you. मैं तुम्हें भेजता हूँ, I will be with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। He had nothing else to rely on. और उसके पास और कुछ भी नहीं था जिस पे वो भरोसा कर सके। That is exactly the language of Great Commission that we read in Matthew और chapter वही 28. जब प्रभु मत्ती में कहता है हमें जाने के लिए और उसकी सेविकाई करने के लिए। Jesus said, I am sending you. यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भेज रहा हूँ Go and preach the gospel. और जाओ संसार की छोर तक सुसमाचार को बताओ। And at the end he says, I am with you. और अंत में वो कहता है कि मैं I am तुम्हारे with you. साथ हूँ, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। To do my work, you don't need to do anything else. मेरे कार्य को करने के लिए तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। I will take care of you. मैं तुम्हारी सारी जरूरतों की पूर्ति करूंगा। The early apostles, when Peter and John, they went to the temple when it was 3 in the afternoon. और शुरुआती दिनों में प्रेरित जो है जॉन और पतरस जो है यूहन्ना और पतरस मंदिर के द्वार से गुजर रहे थे They saw the beggar. और उस भवन के बाहर उन्होंने एक भिखारी को देखा The beggar wanted money. और वो उनसे पैसे चाहता था। And these men said, we don't have. उन्होंने कहा कि हमारे पास वो नहीं है। Maybe you have something, but we don't have. उन्होंने कहा हो सकता है तुम्हारे पास कुछ हो लेकिन हमारे पास You नहीं है। have more money than us. हमारे पास जितने पैसे हैं उनसे कई ज्यादा पैसे तुम्हारे पास है। That is why a Christian worker has always defined neat suit and empty pocket. इसीलिए हमेशा मसीही जो कार्य करता है वो मसीही अच्छे वस्त्र पहनता है लेकिन उसकी जेब खाली होती But है। I don't need to give you money. मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है There तुम्हें। are so many people to give you money. ऐसे बहुत से हैं जो तुम्हें पैसे दे देंगे But what we have, I'm ready to give you. लेकिन जो मेरे पास है मैं तैयार हूँ उसे देने के लिए That is ministry. और वो सेविकाई है। You need to have the gospel as part of your life. आपके जीवन में सुसमाचार का होना जरूरी है। Whether it is in word or action, it must come out of you. आपके शब्द से या कर्म से आपको उसे बाहर दिखाना है। And it is Jesus who said the worker is worth his wages. और यीशु मसीह ने यही कहा कि वो मजदूर जिसको उसके कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा He knows how to take care of you. वो जानता है कि आपकी देखभाल That's वो why कैसे Jesus करे। insisted when you go, don't think about what to take along with you. इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात पे दबाव डाला कि जब तुम जाते हो तो अपने साथ कुछ ना ले You जाओ। know, you either trust him completely or you don't trust him at all. आप उस पे पूरा भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। That day when the Lord called Jeremiah, और उसी प्रकार यिर्मयाह को प्रभु ने he बुलाया told him, I am with you. और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ Don't be afraid of the people that you're going to और जिन speak. लोगों का तुम सामना करते हो उनसे भयभीत मत होना। That is why you read the book of Jeremiah. और इसीलिए जब हम यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ते हैं He was called to be a prophet at a very troubled time the nation went through. और जब देश बड़े ही भयानक परिस्थिति से गुजर रहा था उस समय उन्हें भविष्यवक्ता के रूप में चुना गया And he था। was such a hard nut, he would not budge to any intimidation or threat that people tried to put against और him. जो लोग उन पे दोष लगाते थे धमकाते से उनसे कभी भी वो डरते नहीं थे। That is why he is one among the most popular prophets of the Old Testament. इसीलिए पुराने नियम के सभी ऊंचे भविष्यवक्ताओं में वो गिने जाते हैं। What did he do? उन्होंने क्या किया? When God said, shut up, और जब प्रभु ने कहा कि तुम चुप रहो, I am sending you, मैं तुम्हें भेजता हूँ, I am telling you something, मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, go there and speak. जाओ और वहाँ पे उस चीज को करो। That's it. सिर्फ वही काफी था, That's it. सिर्फ वही काफी था And he was able to start his ministry. और वो अपनी सेविकाई शुरू कर पाए And he just went on and on. और फिर वो आगे बढ़ते रहे। You know, this is exactly what Jesus told his disciples. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी ऐसा ही कुछ कहा था। You know, Jesus did not explicitly say these words, और इस बात को बाहर समझाते हुए ऐसा नहीं कहा, but he probably meant this. लेकिन उनका मतलब यही था, No office for you. No office for you. और तुम्हारे लिए कोई ऑफिस नहीं है, No house for you. तुम्हारे लिए कोई घर नहीं है No salary for you. और कोई तनख्वाह नहीं है, No pocket money for you. कोई पॉकेट मनी नहीं है No secretary for you. और कोई सेक्रेटरी नहीं मिलेगा। I am going to be with you. मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। Are you ready? क्या तुम तैयार हो? And they said yes. उन्होंने कहा हाँ। He said go. फिर जाओ। How many men did he start ministry with? और कितने लोगों के साथ उन्होंने अपनी सेविकाई शुरू की? 11. 11 लोगों के Then साथ। they said 11 doesn't look good. They took one more. They made it 12. और 11 अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए उन्होंने एक और व्यक्ति को लिया और 12 हो गए। Jesus said, you are going to start the ministry from the same city in which I am going to be killed. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसी नगर में जहाँ पे
मुझे मार डाला जाएगा, वहीं से अपनी सेविकाई शुरू करनी है। So he said, you tarry in Jerusalem. और उन्होंने कहा कि यरूशलेम में रहो। And then he said, when the Holy Spirit comes upon you, you shall be witnesses in Jerusalem. और उन्होंने चेलों से कहा कि जब आप यरूशलेम में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा आप पे आएगी और आप गवाही का कार्य You करेंगे। know, now you can talk about Jerusalem as a holy city. अभी आप यरूशलेम को एक पवित्र नगर के रूप में जानते But हैं। when that was spoken out, Jerusalem was the most unsafe place for Christians. और मसीही लोगों के लिए जब ये बात कहा जा रहा था शुरुआती दिनों में, सबसे असुरक्षित स्थान यरूशलेम था। That was one city which was so much against Jesus एक ऐसा नगर जो यीशु मसीह के विरोध में खड़ा रहता that था। if you speak one word for Jesus, they will kill you. अगर वहाँ पे आप यीशु मसीह के बारे में एक भी शब्द कहे, वो आपको मार डालते थे। But Jesus said, you start your ministry from there. लेकिन अपने चेलों से यीशु ने कहा कि यहीं से अपनी सेविकाई शुरू Let करो। me see who touches you. मैं देखना चाहता हूँ कि कौन तुम्हें छूता है। Let me see who touches you. मैं देखना चाहता हूँ कौन तुम्हें छू सकता है। And maybe they said, Lord, this is the place where they are doing this to you. और उन्होंने कहा कि प्रभु ये वही स्थान है जहाँ पे वो आपको मार डालेंगे। Jesus would have said, I'm not afraid. और यीशु मसीह ने कहा मैं तो नहीं डरता, I'm just allowing this to happen. मैं तो इन सबको अनुमति देता हूँ कि इन कार्यों को करो। That is why it happened. और इसीलिए वो चीज घटी। But later we read, लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, when the Christian faith began to spread, जब मसीहत फैलने लगी the leaders were so scared to touch Christians. और वहाँ के जो अगुवे थे वो इतना डरते थे मसीहों को छूने में। Of course, James was put to death. आप जानते हैं कि याकूब को वहाँ पे मार डाला गया, Stephen was put to death. स्तेफनुस को वहाँ पे मार डाला गया। But they could not suppress Christian faith and the लेकिन gospel. मसीहत विश्वास को, मसीहत को वो दबा नहीं पाए। The very place where they tried to kill Christianity, और जिस स्थान पे वहाँ पे मसीहत को वो मार डालना चाहते that थे, is the very place where the church was born. और वही वो स्थान है जहाँ पे कलीसिया का निर्माण My हुआ। friends, I want to tell you, if you're scared about any kind of oppression, मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की दबाव से the अगर आप डरते Church हैं, of Jesus Christ has this distinction of surviving in the midst of oppression. प्रभु के भवन के पास ये अधिकार है और ये उनका चिन्ह है कि दबाव के अंदर ही वो बढ़ोतरी देखते हैं। The Roman government could not stop its expansion. रोमी राज्य उन्हें किसी भी तरीके से रोक नहीं पाया फैलने से। The Jewish leaders could not stop its expansion. यहूदी अगुवे उन्हें रोक नहीं पाए फैलने से। And interestingly, what happened? और यहाँ पे एक रोमांचक बात क्या हुई, 100 years later, 100 वर्ष के पश्चात Rome became the center of world Christianity. और रोम देश जो है वहीं से मसीहत बाहर फैलने लगी। So if you are coming from a community that is resisting the gospel, अगर आप ऐसी जाति से आते हैं जो यीशु मसीह को नहीं स्वीकारते, I can assure you pretty soon that is going to become the headquarters in that region for Christian faith. मैं आपसे कहता हूँ कि मसीहत विश्वास के लिए, मसीह विश्वास के लिए वो स्थान एक हेडक्वार्टर का काम करेगा। This work is not done with muscle power. और ये किसी भी शारीरिक तंदुरुस्ती या ताकत से नहीं हो सकती। This work is not done with money power. और पैसे की दौलत से, ये ताकत से नहीं हो सकती। This work is done with the power of God. और ये कार्य प्रभु की सामर्थ्य से संपन्न हो And सकता that Holy Spirit is in you. है। और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। You are the temple. आप उसकी भवन है। And that is why Jesus could say, you start from Jerusalem. इसीलिए यीशु मसीह कह पाए कि तुम यरूशलेम से शुरुआत करो Let's see who's going to stop. और देखते हैं कि कौन तुम्हें रोकेगा। That's why in the very first sermon, there were 3,000 people who made a decision to follow Jesus. इसीलिए जब पहला प्रचार हुआ, 3000 लोगों ने अपने जीवन को सौंपा They were not worried about the consequences. और वो किसी भी प्रकार के कॉन्सिक्वेंस निर्णय को लेकर चिंतित नहीं थे। Those were the times when the economy was really bad. और वो समय था जब आर्थिक स्तर में हर एक जीवन जो है संघर्ष कर रहा था। And they knew that famine was approaching. और वहाँ पे किसी भी प्रकार का अकाल आने वाला था। But people looked at Jesus and he said, when it is Jesus, nothing else matters. और उन्होंने कहा कि जब यीशु मसीह है तो और किसी बात की चिंता न करूं। They sold all their property, put it at the apostles' feet and said, let it be used for the extension उन्होंने of the जो भी kingdom of कमाया God. था उस संपत्ति को बेचा और उस दौलत को अपने प्रेरितों के चरणों में डाल दिया। The Roman army did not intimidate them. और रोमी सैनिक उसमें नहीं आ पाए Economy did not intimidate और them. किसी भी प्रकार की समस्या वहाँ पे नहीं आई। The organized religious violence against them did not intimidate them. और जब किसी भी प्रकार का धर्म युद्ध यहाँ पे शुरू हो रहा था, उसने वो उन्हें नहीं रोक पाया, Because the one who called could be trusted. क्योंकि जिसने बुलाया है
उस पे हम भरोसा कर सकते हैं। My friend, Jesus is not a weak person. और यीशु मसीह कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। You know, only the picture that you see makes him feel like a weak person. और जो तस्वीर हम उसको जिस तस्वीर में हम देखते हैं हमें लगता है वो बड़ा ही नम्र है और कमजोर He है। is not weak. वो कमजोर नहीं है, He is not weak. कमजोर नहीं है। There is nobody to stop him. और यीशु मसीह को कोई नहीं रोक सकता। You know, closed houses cannot stop और him. बंद घर उसको नहीं दबा सकते। Someone so violent against the Christian faith like Saul of Tarsus could not resist him. तारसीस का जो सौल था जो मसीहत के विरोध में खड़ा रहता था वो उसे नहीं रोक पाया। He made the ones who were against the gospel to be the preachers of the और gospel. जो सुसमाचार के विरोधी थे वही सुसमाचार को बाहर फैलाने लगे। And now he says, you will be my witnesses. अब वो आपको कहता है कि तुम मेरी गवाह बनोगे। The only word witness that we hear in today's world is what is known in the court circles. और जो गवाह जब करके जब हम ये सुनते हैं शब्द हमें सिर्फ ध्यान आता है कचहरी कोर्ट जहाँ पे गवाह का के शब्द का प्रयोग किया जाता है। If someone appears in a court अगर कोई कोर्ट में जाता है कचहरी में जाता है and says, I am the witness, वो कहता है कि मैं गवाह हूँ and doesn't speak, और वो बात नहीं करता, what is the use of that witness? ऐसे गवाह का फायदा क्या? Can you ever heard of a dumb witness क्या किसी गूंगे गवाह के बारे में सुना who है doesn't speak? जो गवाही नहीं देता? A witness is supposed to speak. गवाही देने वाले व्यक्ति को गवाही देनी पड़ती है। You are the witness. आप गवाह हैं। You are the witness. आप वो गवाह हैं। And you can imagine if someone has a case in court. आप सोच सकते हैं कि अगर कोई किसी का केस कोर्ट में चल रहा है And then a witness who is supposed to speak in favor does not appear. और जो गवाह जिसको उनके लिए बात करना है और वो नहीं आता वहाँ पे, Even the innocent will be sentenced as guilty. और जो वहाँ पे जिसने कोई गलती नहीं की होगी उसे भी गुनहगार घोषित किया जाता है। The witness has a crucial role to play. और जो गवाह है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। The witness needs to speak. और गवाह को मुंह खोल के बोलना पड़ता है। If you are the witness and you are not speaking, अगर आप गवाह हैं और आप बात नहीं करते हैं, if you are the witness and you are not going, आप गवाह हैं और आप नहीं जाते, imagine the kind of damage it is going to cause. आप सोच के देखिए कि आप क्या हानि पहुंचा सकते हैं किसी That को। is why God is calling everybody to serve Him. इसीलिए प्रभु हर एक को बुलाता है कि वो उसकी सेविकाई करे। And this business of giving excuse and denying is nothing new. और ये बहानेबाजी करने वाला जो व्यापार है ये कुछ नया नहीं है। God called Moses. Moses said, send someone else. प्रभु ने मूसा को बुलाया, उन्होंने कहा किसी और को भेजो। God asked him to speak. He said, no, let Aaron speak. और प्रभु ने कहा कि तुम बात करो, उन्होंने कहा नहीं, हारून को बात करने दो। But God did not leave him. लेकिन प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। If God had listened to Moses, then this Bible would be 5 books. अगर प्रभु ने मूसा की बहानेबाजी को हामी भरी होती तो बाइबल में 5 पुस्तकें कम होती। God said nothing doing, come. और प्रभु ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम आओ। And today we are so happy that Moses accepted that call. आज हम बहुत आनंद मनाते हैं कि मूसा ने उस बुलावट को स्वीकृति दी। It is not just Moses. और ये सिर्फ मूसा नहीं था। You know, Gideon had a problem accepting call. और गिदोन के पास भी समस्या थी यीशु मसीह की बुलावट को सुनने But के then we लिए। also come across people like Isaiah. और लेकिन फिर वहाँ पे इसाया जैसे लोग भी हैं। When God said, whom shall I send? और जब प्रभु ने पूछा कि मैं किसे भेजूं, He said, here am I, Lord. इशाया ने कहा कि यहाँ पे हूँ मैं प्रभु, Send me. मुझे भेजो, Send me. मुझे भेजो। Now today you're going to give an excuse, or today you're going to speak like Isaiah is your choice. क्या आप बहानेबाजी करने वाले हैं आज या फिर इशाया की तरह कहने वाले हैं? चुनाव आपके हाथ में है। You know, Dwight L. Moody is one of the greatest preachers in the history of Christianity. और मसीहत में एक बहुत बड़े प्रचारक है जिन्होंने इस प्रकार कहा है। And he got saved when he listened to another preacher speak. और उन्होंने उद्धार तब पाया जब उन्होंने एक और बड़े प्रचारक को प्रचार करते हुए And सुना। then he wanted to serve the Lord. और उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो सेविकाई करेंगे। So he accepted the full-time call. और उस सेवक ने जो है पूरे समय सेविकाई करने का सोचा। And he joined his church. और वो कलीसिया में गया। The first time he was given an opportunity to speak for a short while. और पहला जो मौका उन्हें मिला था वो बहुत छोटे समय का मिला And था। after the service was over, और जब वो सभा खत्म हुई 2 elders approached him. और जो 2 अगुवे थे वहाँ पे वो उनके पास आए। And then he thought they are coming to appreciate me. और उन्हें लगा कि वो उनको समझाने आ रहे हैं, उनसे बात करने आ रहे हैं। And then they said, please do us a favor. और उन्होंने कहा कि हमारे लिए तुम एक काम करो। The first man said, do not speak again at all. और ये मेहरबानी करो कि इसके बाद दोबारा कभी
प्रचार मत And then करना। the second man said, your grammar is so horrible that we just cannot listen. और उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाषा इतनी खराब है कि हम सुन नहीं पा रहे थे। Moody smiled at them. और मूडी ने इस प्रकार उनसे कहा, And then he looked at both of them and said, और उन दोनों को देखते हुए उन्होंने कहा, your English is good. और उन्होंने कहा कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है, Your grammar is good. उन्होंने कहा कि आपका ग्रामर बड़ा अच्छा है, But what did you do with your English and grammar? लेकिन आपने अपनी भाषा के साथ क्या किया? They had no answer. उनके पास कोई जवाब नहीं है। He said, I know my grammar is bad, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरी भाषा ठीक नहीं but I है, still want to speak for Jesus. लेकिन फिर भी मैं यीशु के लिए बात करना चाहता हूँ। If Moody had listened to the criticism of those two और elders, उन दोनों की बात अगर वो मान लेते, Chicago would not have had a great preacher like him. और शिकागो में ऐसे बड़े मूडी नाम के प्रचारक नहीं होते। So just because you accept the call, सिर्फ आप उनकी बुलावट को जब मान लेते हैं, people are not going to welcome you with a garland. लोग आपको जो है आपको आमंत्रित नहीं करने लगेंगे। People are not going to come around and pat you on the back and you said, good, keep it up. लोग आपको आके उत्साहित नहीं करेंगे और आपको बढ़ावा नहीं देंगे। Maybe there are people to come and criticize you like हो anything. सकता है लोग आए और आप पे दोष लगाने लगे। That is when Jesus says, और वही वो समय है जब यीशु कहता they है, are not going to come with you all through your life. आपके जीवन भर वो आपके साथ नहीं आएंगे। Today the world knows who Moody is. आज संसार जानता है कि मूडी कौन है, The world doesn't even know the names of those two elders. और संसार उन दो व्यक्तियों का नाम भी नहीं जानते। But that day they were big men in the church. लेकिन उस दिन कलीसिया के वो बड़े अगुवे थे। So what? फिर भी क्या? So what? फिर क्या? So maybe as you start today, others will tell many things. हो सकता है जब आज आप शुरुआत करें दूसरे आपकी निंदा करें, But be assured of one thing. लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, The only person who is going to come along with you और एक व्यक्ति जो हमेशा सदैव आपके साथ बना रहेगा, is Jesus. वो यीशु मसीह है। When you face a hostile crowd, और जब आप ऐसी भीड़ के सामने खड़े होते हैं, when a crowd is coming to attack you, और जब भीड़ आपको मारने के लिए दौड़ती it है, is not an elder or it is not a pastor who is going to protect और you. वो कलीसिया का कोई बुजुर्ग या अगुवा नहीं है जो आपकी सहायता करेगा, It is going to be my Jesus. और वो मेरा यीशु आपकी सहायता करेगा। And I want to thank him मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, because he doesn't tell me now you sing, then only I can come. वो नहीं कहता कि तुम अभी गाओ तभी मैं वहाँ पे आऊंगा, He is with me all the वो while. हमेशा मेरे साथ बना है। When I walk through the valley, और जब मैं अंधकार से गुजरूं, he is with me. वो मेरे साथ है, I don't need to be scared. मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। He doesn't visit me once in a while and go away. वो एक बार या दो बार मुझसे मिलने नहीं आता और चला नहीं You need to be जाता। assured of that. आपको इस बात से निश्चित रहना है। In life, you're going to face many challenges. आपके जीवन में आप बहुत सी चुनौती का सामना करेंगे। And in all those challenges, he is always going to be with you. इन चुनौतियों के दौरान वो सदैव आपके साथ बना रहेगा, He's not going to leave you. वो आपको नहीं छोड़ेगा। If you trust him, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, you will tell like Isaiah, आप इशाया की तरह कहेंगे Lord, I am ready. कि प्रभु मैं तैयार हूँ। I don't even know what I will end up doing. मैं नहीं जानता कि मेरा अंत क्या होगा, I don't even know which part of India I will be serving. मैं नहीं जानता कि भारत के किस कोने में मैं सेविकाई करूंगा, I don't even know which state or which people group I will go and minister मैं to. नहीं जानता किस नगर में या किस जाति के साथ मैं सेविकाई I करूंगा, don't even know what I'm going to speak. मुझे नहीं पता कि मैं क्या बात करूंगा। God says that's not your business. प्रभु कहता है कि वो तुम्हारी समस्या नहीं I है, will send you मैं तुम्हें भेजूंगा, and I will tell you what to do. मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या कहना And that है। is exactly what he told Jeremiah. और वही यिर्मयाह से प्रभु ने कहा, God insisted that he must respond. और प्रभु ने उस पर दबाव डाला कि वो जवाब दे सके, He responded and it was not a और mistake. तुरंत उन्होंने जवाब दिया और वो कभी भी बुरा जवाब नहीं God था। insisted that Moses should respond. प्रभु ने इस बात पे दबाव डाला कि मूसा इस बात को स्वीकारे, And it was not a mistake. और उनकी गलती नहीं थी जब उन्होंने उस बात को God स्वीकार दिया। insisted that Gideon must और respond. प्रभु ने दबाव डाला कि गिदियन पे वो हामी भरे, It was not a mistake. और वो कोई किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं था। God insisted that Matthew must respond. और प्रभु चाहता था कि मत्ती वो कार्य करे, That is why we have the first book of the New Testament. और इसीलिए नए नियम की पहली पुस्तक बनी। He left his account notebook, he left his cash, everything, and then he followed. उसने अपने पैसे को छोड़ा और अपनी पुस्तक को छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे चल गया। Now it's your turn. ये अब आपकी बारी है, Now it's your turn. अब आपकी बारी है। We are glad to tell you हम बड़े ही आनंद के साथ आपको कहते that the हैं, decision we made for Jesus never went wrong. जो निर्णय हमने यीशु मसीह के लिए लिया था वो गलत नहीं है। I made a decision 25 years ago. और 25 साल पहले मैंने एक निर्णय लिया था, I have no regrets. और किसी भी बात की चिंता
नहीं है I मुझे have no regret. और किसी भी प्रकार का चिंता You नहीं है। ask any missionary, आप किसी भी मिशनरी से पूछें you ask any pastor, और किसी भी पासवान से पूछें you ask any youth और worker, किसी भी जवान कार्य करने वाले से whether the पूछें decision they made to serve the Lord was a mistake. जो निर्णय उन्होंने प्रभु के पीछे चलने का लिया, क्या वो उनकी गलती थी? Never, नहीं, never. नहीं। So that's why the Bible says, even when we walk through the valley of shadow of death, we fear no evil. इसीलिए बाइबल का वचन कहता है कि घनघोर तराई से भी आप होके गुजरे तब भी वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगी, Because the one who called us is going to be with us till the very end. क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो अंत तक आपके साथ बना रहेगा। So I want to stop right here. और मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। India needs people. और भारत ऐसे लोग की खोज में है The harvest is plentiful. और कटनी बहुत ज्यादा है। There are many opportunities. बहुत सारे मौके आपके सामने हैं The door is open. और द्वार खुला हुआ है। We do not know when the door is going to be closed. हम नहीं जानते कि द्वार कब बंद हो जाएगा। I know for sure right now that as I was speaking, the Spirit of the Lord was speaking to you as मैं well. जानता हूँ कि जैसे मैं यहाँ से बात करता हूँ, आपसे पवित्र आत्मा आपसे बात करता And है। I know that the Spirit of the Lord was telling you that you are His choice. मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको कहती है कि आपको उसने चुना है। I know that you in your heart listen to the voice of Jesus and He say, you can trust me, I will not leave you. और मैं जानता हूँ कि आप अपने हृदय में प्रभु की आवाज सुन सकते हैं और आप उस पर भरोसा करें, वो आपको कभी नहीं And if छोड़ेगा। the Lord has spoken to you, अगर प्रभु ने आपसे बात की है, this is the right time to respond. ये सही समय है उसके जवाब कर देने का। Don't disappoint Him further. और उसे और निराश न करें। One life, एक जीवन it will soon be past. और एक किसी भी समय खत्म हो सकता है। And what you have done for Christ, आपने मसीह के लिए क्या किया, only that will last. सिर्फ वही आगे तक बना रहेगा। He knows your family. और आप अपने परिवार के साथ रहें। He knows your profession. वो आपके परिवार को जानता है, He knows your background. वो आपकी जीवनी को जानता है। He knows the opposition that you're going to face. आप जैसी परिस्थिति में जाएंगे उस परिस्थिति को जानता He है। knows the criticism that you're going to face. और जिस तरीके की बातों का आप सामना करेंगे वो भी जानता But है। He says, before all that I know you. और वो कहता है इन सब से बढ़ के मैं तुम्हें And जानता only हूँ because I know you, I'm calling you. और मैं तुम्हें जानता हूँ इसीलिए मैं तुम्हें बुला रहा And He हूँ। says, I am sending you. और वो कहता है कि मैं तुम्हें भेजता हूँ, I have appointed you. मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, You just go. तुम्हें जाना है, I will be with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ And you will work wonders. और तुम महान कार्य करोगे You मेरे will लिए। achieve great things. तुम बहुत सारी चीजें प्राप्त करोगे You मेरे know, लिए। the great achievers of the kingdom of God were not great men in the secular world. और प्रभु के राज्य में जिन्होंने बहुत ऊंची स्थान को प्राप्त किया है, वो साधारण संसार में उन्होंने उतने ऊंचे स्थान को प्राप्त नहीं किया। Moody was a man who was selling shoes. और मूडी एक ऐसा व्यक्ति था जो जूते बेचता था। William Carey was a man who was making shoes. और विलियम कैरी ऐसे व्यक्ति थे जो जूते बनाते थे। But that did not stop them from becoming great preachers and great missionaries. लेकिन उस कार्य ने उन्हें नहीं रोका कि वो बड़े प्रचारक बने और बड़े You can बड़े be बने। anybody. आप कुछ भी बन सकते हैं। God can transform you in no time. प्रभु आपके जीवन को किसी भी रीति से परिवर्तन कर सकता है। Maybe today you cannot speak one sentence हो properly. सकता है कि आज आप एक वाक्य बिना गलती के ना बोल पाते But हो। just like how it happened to Isaiah, और जिस प्रकार इसाया के साथ हुआ, when the Lord touches your tongue, और जब प्रभु आपकी जबान को छुएगा, nobody can stop you from speaking. कोई भी बोलने से आपको नहीं रोक सकता। You will have the tongue of the wise. आपके पास एक सामर्थ्य जीभ होगी। Your wisdom will excel the wisdom of this world. आपका ज्ञान इस संसार के ज्ञान से ऊंचा होगा, Because it is not going to come from this world, it is going to come from God. क्योंकि वो इस संसार से आपको प्राप्त नहीं होगा, वो प्रभु से आपको प्राप्त And होगा। God believes in raising the foolish in order to shame the प्रभु wise. विश्वास करता है मूर्खों को जागरूक करने में, ताकि वो जो समझदार है उन्हें निराश कर सके। And then He is giving you the message of the cross. और वही क्रूस का संदेश आज आपको देता है। And that is foolishness to those who are perishing. और जो नाश हो रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं, उनके लिए वो मूर्खता है। But for us who are being saved, it is the power of God. लेकिन हम जिन्होंने उद्धार पाया है, हमारे लिए वो सामर्थ है प्रभु की ओर से। You can trust Him always. आप हमेशा उस पे भरोसा कर सकते हैं। So this is the time we are going to think, और ये वो समय है we are going to respond. हम उसका जवाब दें। And I want everybody to bow down their heads right where you are. मैं चाहता हूँ आप जहाँ खड़े हैं अपने सिरों को आप झुकाएं, You don't have to do anything because I'm asking you. क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इस वजह से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, Because I will be gone tomorrow. क्योंकि कल मैं चला जाऊंगा। God knows when we will meet again. और प्रभु जानता है कि दोबारा हम कब But the मिलेंगे। one who said who is going to be with you is not me, it's कि Jesus. जिसने कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ बना रहूंगा, वो
ही यीशु मसीह है। He said, I will never leave you. और उसने कहा कि वो कभी नहीं तुम्हें छोड़ेगा। Even when your parents are gone, I will never leave you. तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ जाएंगे लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा। Your critics will be gone, but I will never leave you. आपके